بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اہم ایشو پہ یہاں پر بیٹھے تھے، جس میں محمد خان صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اپوزیشن لیڈر اکرم خان درانی، ان دو بندوں کو گورنر صاحب نے سمری بھیجی تھی کہ چونکہ صوبائی اسمبلی تعلیل ہوئی ہے اور آپ دونوں آپس میں بیٹھیں اور افہام و تفہیم سے ایک نیا کیئر ٹیکر چیف منسٹر کا انتخاب کریں۔ میرے خیال میں تاریخ میں پہلی بار جو میں محسوس کرتا ہوں، پرویز خٹک صاحب بھی پرانے آدمی ہے، اور پہلی بار ہوا ہے کہ اتنی دوریاں جو جماعتوں کے درمیان ہیں، اور حالات آپ کو سارے معلوم ہیں، لیکن ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس صوبے میں کہ عوام بہت تکلیف میں ہے اور بڑے پریشان ہیں۔ یہاں پر سنگین مسئلہ ہے بدامنی کا، اور سنگین مسئلہ ہے مہنگائی کا، اور اس دوران میں مجھ پہ بھی، میری جماعت پہ بھی اس صوبے کے عوام نے بہت زیادہ احسان کیا ہے، ہمیشہ عزت دی ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی 2 بار اس صوبے کے عوام نے وہ عزت دی جو کسی دوسری جماعت کو 2 بار ملی بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اس قوم کو مزید مایوسی کی طرف دھکیلنا، اس کو اس خفت میں ڈالنا، یہ فیصلہ اگر آج ہم نہ کر سکے تو پھر میرے خیال میں ہماری جو سیاسی کٹ کٹ ہے اس پہ بھی لوگوں کو ہوگا کہ اتنے بڑے سینئر لوگ ہیں اور ملک کے اور صوبے کی یہ حالات ہیں، اور ابھی بھی وہ ضد پہ ہے، آنا کا مسئلہ بنا رہے ہیں اور کینچا تانی کر رہے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں چونکہ اس میں پرویز خٹک صاحب نے بڑا کردار ادا کیا، سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب کا بھی مشکور ہوں، اسپیکر صاحب کا بھی مشکور ہوں، اور اس کی جماعت کا بھی مشکور ہوں، چونکہ اگر ہم چاہیں تو پھر بھی اگر جماعت کے بڑے نہ چاہیں تو وہ بات انکمپلیٹ ہوتی ہے، اور ہمارا نہ میرا اور نہ ان کا کوئی اپنے اختیار تو ہے نہیں، ہم جماعتوں کے اس فرمولے پہ آتے ہیں جو ہمیں ہدایات دیتے ہیں، میں اس کا بھی مشکور ہوں۔ 2-3 نام ان کے تھے، 2 نام میرے پاس تھے، ان کے بھی اچھے لوگ تھے، آپ کو خود بتا دیں گے کہ کون تھے، اور میرے بھی دونوں اچھے نام تھے۔ اس میں سے ہم نے آپس میں یہ بات کی کہ ہم ابھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ آپ کا، یہ ہمارا ہے، کوالٹی کو ذرا دیکھیں کہ ایک دوسرے سے کتنی بہتری میں ہے۔ ابھی ان حالات میں جو مجبوری ہے وہ 2 قسم کی ہے، کہ ایک ایسا آدمی ہو کہ وہ ایڈمنسٹریشن کو بہتر سے بہتر جانتا ہو، اور فائنینشلی امور پہ بھی اس کا اتنا عبور ہو کہ اس صوبے میں کسی کا اور کا نہ ہو۔ اس پہ جو میرے 2 بندے تھے، اس میں ایک تھا اعظم خان صاحب چیف سیکرٹری، جو پرانے نام ہے اس صوبے کا، اور ایک این پی نے دیا تھا ظفر اللہ خان، اور اس کے نام ایک اویس صاحب، پورا نام ہے اس کا اویس حیاؤدین، اویس حیاؤدین صادق صاحب، اور تیسرا صاحبزادہ سعید صاحب، صاحبزادہ سعید صاحب، وہ بھی اس صوبے کے فائنینشلی بھی اور فائنانس سیکرٹری بھی رہے ہیں اور بہت اچھے کام کیے ہیں۔ لیکن چونکہ ان سب میں سے جو بہتر تھے سارے، اس میں سے چناؤ کیا ہم نے متفقہ طور پہ کہ اعظم خان جو ہمارا چیف سیکرٹری ریٹائرڈ ہے، عباس خان اس کا بھائی تھا، آئی جی ایف سی تھے، اس پہ نام پہ ہمارا اتفاق ہو گیا، اور انشاءاللہ یہ خبر جب عوام کو پہنچے گی تو کم از کم اس کی ذہنوں میں ہم بھی جو بیٹھے لوگ ہیں وہ بھی کہیں گے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے اس پہ کینچا تانی یا
आना का मसला नहीं बनाया। तो मैं इस सूबे के आवाम को खुशखबरी देता हूँ कि हमने सियासत से बलातर पॉलिटिक्स से इस सूबे के आवाम के लिए ये फ़ैसला किया है कि वो इंशाअल्लाह आज़म ख़ान हमारे चारों का जो यहाँ पर बैठे हैं, इसमें से किसी की राय भी इस तरह नहीं थी कि उसके ख़िलाफ़ इस तरह हो कि उसमें कोई कमी है। और हमने अभी इत्तेफाक के राय से इंशाअल्लाह फ़ैसला किया है और अभी हम लेटर लिखेंगे और इस पर मोहम्मद ख़ान साहब का दस्तखत भी होगा, अपोजिशन लीडर अकरम ख़ान दुरानी का भी होगा और इंशाअल्लाह अभी हम रात को वो लेटर भेजेंगे और हम यही तवक्को करते हैं कि फ़ौरी इस पर अमल हो और इस अमल से इंशाअल्लाह यहाँ पर सियासी इस्तेकाम भी होगा और लोगों के दिलों में एक एहतराम का जो रिश्ता है वो भी इंशाअल्लाह पैदा होगा। तो मैं एक बार फिर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़े फ़र्क दिली से और बड़े एक मोहब्बत के अंदाज से उस कैंडिडेट को तस्लीम किया, जो कि वो सारे परवेज़ खटक साहब भी पुराने आदमी हैं, आज़म ख़ान को वो बेहतर जानता था और उसने कहा कि इस पर कोई ऐसी उंगली उठाने की बात नहीं, हम क्या कहेंगे कि इस आदमी में कोई कमी है। तो एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया और हमें चारों को अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी बात आई थी कि ऐसी आदमी का चुनाव करो कि कोई मुतनाज़ा ना हो। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और एक दफ़ा फिर इनका भी शुक्रिया अदा करूँ। बहुत बहुत मेहरबानी। जिस तरह दुरानी साहब ने बात की और ये मेरा ख्याल में तारीख़ में पहली दफ़ा हो रहा है कि अपोजिशन लीडर और चीफ मिनिस्टर साथ बैठ के एक फ़ैसला उन्होंने आज कर लिया है सूबे के मफाद में, सूबे के अवाम के लिए। ये एक तारीख़ी दिन है आज। जो नाम मेरे तरफ से आए थे, एक साहबजादा सईद साहब थे और एक अवैस हयाउद्दीन साहब थे और उसके साथ सादिक साहब हमारे थे, 3 हमारे नाम थे और दुरानी साहब की तरफ से 2 नाम आए थे जो उन्होंने बता दिया, एक आज़म ख़ान के और एक ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब की। तो हमने बहस की उस पे खटक साहब आज़म ख़ान साहब को बेहतर जानते हैं, तो उन्होंने भी ओके कर दिया और फिर हमने ये सारी बातचीत अपने लीडर इमरान ख़ान से भी की। उनके मशावरत के बाद हमने फ़ैसला कर लिया कि हम आज़म ख़ान के नाम पे इत्तेफाक कर लेते हैं और मेरे ख़्याल में अगर आज हम ये इत्तेफाक ना करते तो बात कमेटी में और फिर कमेटी के बाद ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन के हाथों चला जाता। तो बेहतर ये था कि अवामी नुमाइंदे बैठ के ये फ़ैसला कर ले, इसका एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा और दुरानी साहब के लिए मुश्किल होगा क्योंकि उनके लिए अपने जो इनके और पार्टनर्स है, एलाइज़ है, उनके साथ अब ये बात करेंगे तो ये इनका काम है। बाकी हमारी तरफ से आज़म ख़ान साहब क्लियर है और हम उनको अपने पार्टी की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरफ से एज अ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर वेलकम करते हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर ये बताएं कि 2018 में भी गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान एक इजरान स्कीम के ऊपर इत्तेफाक हो गया था, लेकिन बाद में अपोजिशन जमातों की तरफ जानिब से इतराज़ उठाया गया था, फिर वो नाम वापस हो गया था कि ऐसी सूरत हाल दोबारा तो पैदा नहीं होगी। देखिए, अगर आप ये सवाल मुझसे करते हैं तो मैंने तो पहले से बता दिया कि खटक साहब भी इस सिलसिले में बैठे हुए थे, मुश्ताक साहब स्पीकर साहब हमारे साथ भी यहाँ पर थे और फिर हमने अपने लीडर से मशावरत की तो उसके बाद हमने ये फ़ैसला कर लिया है। तो मेरे लिए तो कोई नहीं, हम बैकआउट नहीं करेंगे, हम इस फैसले की तायीद भी करते हैं और इस पर खड़े रहेंगे। दुरानी साहब ने कहा है कि ज़ाहिर है कि यहाँ जो क़ियादत है उसका शुक्रिया दे के और क़ियादत का भी शुक्रिया दिया जाए, तो क्या PTI और अपोजिशन जमातें की क़ियादत है उस दौरान आप लोगों के राब्ते हो गए कि उन्होंने इस नाम पे इत्तेफाक किया? अभी चूँकि जब कोई भी आता है तो अपने बुज़ुर्गों को एतमाद में लेता है, इसके अलावा तो हो नहीं सकता। अभी यह है जी कि मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप भी जोड़ने की कोशिश करें, सहाफ़ी हमेशा तोड़ने की कोशिश में होता है अपने वहाँ पर। ये वक्त आपकी भी तोड़ने की नहीं है। आपसे मैं सवाल करूँ सबसे, मुझे आज़म ख़ान से बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और बेस्ट फाइनेंशियली आदमी, ये इंटीरियर गवर्नमेंट में मिनिस्टर इंटीरियर भी रह चुका है और मिनिस्टर फाइनेंस भी रह चुका है और पूरे सहाफ़ी भी, और मैं पूरे सूबे के आवाम को चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई भी आज़म ख़ान साहब के बारे में जो उसने ज़िंदगी गुजारी है, कोई ऐसी एक बात भी हो
जो कि एक इंसान तो फरिश्ते तो हम नहीं हैं, और कुछ इंसान इस तरह भी होते हैं कि वो अपने भी पसंद करते हैं, पराए भी पसंद करते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में आप लोग उसको सराहें, और इंशाल्लाह कोई ऐसी बात हो, पहले किसी को किस चीज़ पे एतराज़ होगा, हो सकता है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, आप सब जानते हैं। लेकिन ये बंदा जो है, ये हमने खालिसतन मेरिट पे किसी चीज़ को देखते हुए नहीं, इस सूबे के गरीब आवाम को देखते हुए कि वो पिस रहे हैं, बदआमनी हुई है, और हमारी ख़वातीन जो है वो कतारों कतारों में खड़ी है आटे के लिए। दुरानी साहब, इसको इस तरह शॉर्ट कर लेते हैं। शाहब, आपका जो क्वेश्चन है, जी जी, दो बंदों के पास इख्तियार है, एक चीफ मिनिस्टर के पास और एक अपोजिशन लीडर के हाँ। पास। जब हम दो एग्री है, जब मैं भी राजी तो क्या करे काजी। शुक्रिया जी, थैंक यू।